Hello students of class 6. I am going to teach you geography chapter first, the planet Earth. Now I am starting this chapter 1, the planet Earth. The vast space containing all the celestial bodies is called the universe. सभी आकाशीय पिंडों वाले विशाल स्थान को ब्रह्मांड कहा जाता है. The universe is the body containing the stars, planets, dust और gases. ब्रह्मांड वह पिंड है जिसमें तारे, ग्रह, धूल या गैसें हैं. The universe is so huge that it is difficult to imagine its size. ब्रह्मांड इतना विशाल है कि इसके आकार की कल्पना करना मुश्किल है. The celestial bodies, आकाशीय पिंड. When we look up at the sky, we see the sun during the day and uncountable stars, moon at night. जब हम आकाश को देखते हैं तो हम दिन के दौरान सूर्य को देखते हैं और रात में बेशुमार सितारों को और चंद्रमा को. All the objects in the sky are called heavenly bodies or celestial bodies. आकाश में वस्तुओं को स्वर्गीय पिंड या आकाशीय पिंड कहा जाता है. The sun, the stars, the planet and the moon are heavenly bodies. सूर्य, तारे, ग्रह और चंद्रमा स्वर्गीय पिंड हैं. There are many other heavenly bodies which we cannot see with naked eyes because they are very far from us. कई अन्य स्वर्गीय निकाय हैं जिन्हें हम नग्न आँखों से ही नहीं देख सकते क्योंकि वे हमसे बहुत दूर हैं. The stars means तारे. A star is a heavenly body that it is self-luminous. एक स्वर्गीय निकाय है जो स्वयं प्रकाशमान है अर्थात shines by producing its own light. अपने स्वयं के प्रकाश का उत्पादन करके वह चमकता है. Stars are very big celestial bodies. They look small because they are very far away from us. The sun is the nearest star to the earth. The stars are made up of burning gases. तारे बहुत बड़े खगोलीय पिंड हैं. वे छोटे दिखते हैं लेकिन वे हमसे बहुत दूर होते हैं इसीलिए वो हमें छोटे दिखते हैं. सूर्य पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है. तारे जब जलते हैं तो उनमें से गैस निकलती है और हमें वह दिखाई नहीं देती. Constellations. If you watch the night sky closely, you can see clusters of the stars. तारामंडल. यदि आप रात के आकाश को करीब से देखते हैं तो आप तारों के समूह को देख सकते हैं. These groups of stars are called constellations. तारों के इन समूह को हम नक्षत्र कहते हैं. एक constellations may have just 10 stars of sometimes more than a million stars. एक तारामंडल में सिर्फ 10 तारे या कभी-कभी 1 लाख से भी अधिक तारे हो सकते हैं. There are 88 constellations known so far. You can identify some of these with naked eyes like the Ursa Major, Orion, Scorpius, Canis Major, Taurus etc. अब तक ज्ञात 88 नक्षत्र हैं. आप इनमें से कुछ को नग्न आँखों से पहचान सकते हैं जैसे कि सप्तर्षि मंडल, आर्यन बिच्छू, कैनिस मेजर, वृषभ आदि. The solar system. The solar system is the name given to the sun. All the planets that revolve around it.
their satellites, meteors, comets, and asteroids. सोलर सिस्टम, सौर मंडल। सौर मंडल सूर्य को दिया गया नाम है। सभी ग्रह को जो इसके चारों ओर घूमते हैं उनके उपग्रह, धूमकेतु और क्षुद्र ग्रह, the sun, the planet and their satellites all have their own gravity of different states. सूर्य ग्रह और उनके उपग्रह सभी की अपनी अलग अलग ताकत है। Their pull on each other is what holds them in space in the solar system and keeps them where they are. एक दूसरे पर उनकी खींचतान ही उन्हें सौर मंडल में जगह दिलाती है और उन्हें जहाँ रखती है वहीं रखती है। Thus, solar system can be defined as the sun together with the 8 planets and all other celestial bodies that are bound by its gravity. इस प्रकार सौर मंडल को सूर्य के रूप में 8 ग्रहों को और अन्य सभी खगोलीय पिंडों के साथ परिभाषित किया जा सकता है जो इसके गुरुत्वाकर्षण से बंधे हैं। The sun. The sun is the head of the solar family. It is the nearest star to the earth. सूर्य सौर परिवार का प्रमुख है। यह पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। Like all other stars, the sun is made up of hot gases. Hydrogen and helium are the main gases that make up the sun. अन्य सभी तारों की तरह सूर्य गर्म गैसों से बना है। हाइड्रोजन और हीलियम मुख्य गैसें हैं जो सूर्य को बनाती हैं। The moving clouds of these gases is known as nebula. The sun has the surface temperature of almost 6000 degrees Celsius. इन गैसों के चलते हुए बादल को नेबुला के नाम से जाना जाता है। सूर्य की सतह का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है। न्यूक्लियर फ्यूजन इज responsible for the sun's energy. Nuclear fusion is a process in which two light nuclei combine to form a heavy nucleus. परमाणु संलयन सूर्य की ऊर्जा के लिए जिम्मेदार है। नाभिकीय संलयन एक प्रक्रिया है जिसमें दो प्रकाश नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक को बनाते हैं। The distance of the sun from the earth is about 150 million kilometers. The light from the sun, which travel at a speed of about 3 lakh kilometers per second, takes about 8 minutes to reach us on the earth. पृथ्वी के सूर्य की दूरी लगभग 150 मिलियन किलोमीटर है। सूर्य से प्रकाश जो लगभग 3 लाख किमी प्रति सेकंड की गति से यात्रा करता है, हमें पृथ्वी पर पहुंचने पर लगभग 8 मिनट लगते हैं। The planet. All the 8 planets of our solar system, Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune, revolve around the sun in fixed paths known as orbits. The planets. ग्रह। हमारे सौर मंडल के सभी 8 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून हैं। कक्षा में सूर्य के चारों ओर घूमते हैं जिन्हें परिक्रमा के रूप से जाना जाता है। They also rotate on their own axis while revolving around the sun. All the planets are spherical in shape and vary in size and composition. सूर्य की परिक्रमा करते हुए वे
अपनी धुरी पर घूमते हैं। सभी ग्रह आकार में गोलाकार हैं और आकार और संरचना में भिन्न हैं। प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ओन लाइट। ग्रहों का अपना कोई प्रकाश नहीं होता। दे रिफ्लेक्ट द लाइट दैट दे रिसीव फ्रॉम द सन। वे सूर्य से प्राप्त प्रकाश को प्रतिबंधित करते हैं। It is important to know that Pluto has been removed from the list of our planets and recategorized as a dwarf planet. ये जानना महत्वपूर्ण है कि प्लूटो के पास क्या है। यह जानना महत्वपूर्ण है क्योंकि उसको अपनी सूची से हटाया गया था और एक बौने ग्रह के रूप में फिर से वर्गीकृत किया गया था। While the sun has its own light like other stars, the planets reflect the light of the sun. Moreover, like other stars, the sun emits its own heat too, and planets receive this heat from it. ग्रहों का अपना प्रकाश नहीं है, ये तो आप सभी जानते हैं। लेकिन जबकि अन्य सितारों की तरह सूर्य का अपना प्रकाश है। ग्रह सूर्य के प्रकाश को दर्शाते हैं। इसके अलावा अन्य सितारों की तरह सूर्य भी अपनी ऊष्मा उत्सर्जित करता है और ग्रहों को इसमें ऊष्मा प्राप्त होती है। The orbits in which the planets move around the sun are shaped like flattened circle. The paths that they move in are elliptical, so they are also called ellipse. जिन कक्षाओं में सूर्य के चारों ओर ग्रह घूमते हैं वे चपेटे या चपटे घेरे के आकार के होते हैं। वे जिन रास्तों पर चलते हैं वे अंडाकार होते हैं, इसलिए उन्हें दीर्घवृत्त भी कहा जाता है। Our Earth a unique planet. हमारी पृथ्वी एक अद्वितीय। The following features make the Earth a unique planet in the solar system where life is possible. हमारी पृथ्वी एक अद्वितीय ग्रह है। निम्नलिखित विशेषताएं पृथ्वी और सौर मंडल में एक अद्वितीय ग्रह बनाती है जहां जीवन संभव है। जैसे नंबर 1, डिस्टेंस फ्रॉम द सन, सूर्य से दूरी। इट इज लोकेटेड एट द फेवरेबल distance from the sun such that it is neither too hot nor too cold. यह सूर्य से एक अनुकूल दूरी पर स्थित है जहाँ जैसे कि यह ना तो गर्म होता है ना ही बहुत ठंडा होता है। नंबर 2, presence of oxygen. The earth is surrounded by a layer of the atmosphere containing about 21% of the oxygen which sustains life on earth. ऑक्सीजन की उपस्थिति पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने वाले वातावरण की एक परत जो इससे घिरा हुआ है लगभग 21% ऑक्सीजन युक्त है जो पृथ्वी पर जीवन का निर्वाह करता है। नंबर 3, प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर. The atmosphere acts as a blanket to the earth by preventing the harmful ultraviolet rays from the sun and extreme temperatures. वायुमंडल की उपस्थिति सूर्य और अत्यधिक तापमान से हानिकारक पैरावैगनी किरणों को रोककर वायुमंडल पृथ्वी को कंबल का काम करता है। नंबर 4, प्रेजेंस ऑफ वाटर, पानी की उपस्थिति। द अर्थ इज ऑन द ओनली प्लेनेट ऑन विच वाटर इज फाउंड इन लिक्विड, सॉलिड एंड गैसियस फॉर्म. इट हैज एबंडेंस ऑफ वाटर. पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर पानी तरल, ठोस और गैसीय रूप में पाया जाता है। इसमें पानी की प्रचुरता है। About 71% of the Earth's surface is covered with water. पृथ्वी की सतह का लगभग 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है।
Therefore, to the astronauts who see the Earth from space, the Earth appears blue in color. That is why the Earth is also called a blue planet. इसीलिए अंतरिक्ष यात्रियों के लिए जो अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते हैं, पृथ्वी का रंग नीला दिखाई देता है, इसीलिए पृथ्वी को एक नीला ग्रह भी कहा जाता है। सैटेलाइट्स मीन्स उपग्रह। इन जनरल ए सैटेलाइट इज एनीथिंग दैट ऑर्बिट्स समथिंग एल्स, एज फॉर एग्जाम्पल द मून ऑर्बिट्स द अर्थ एंड इज ए सैटेलाइट। सामान्य रूप से एक उपग्रह वह चीज है जो कुछ और परिक्रमा करता है। उदाहरण के लिए एक चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है और एक उपग्रह है। Like the planets, the satellites have no light of their own and they too reflect the light they receive from the sun. ग्रहों की तरह उपग्रहों का भी कोई अपना प्रकाश नहीं होता और वे भी सूर्य से प्राप्त प्रकाश को प्रतिबिंबित करते हैं। Today, man-made satellites are being launched into space to study weather conditions, develop telecommunication, take photographs and map large areas of the earth and conduct experiments in space. आज मौसम की स्थिति का अध्ययन करने, दूरसंचार विकसित करने, तस्वीरें लेने और पृथ्वी के बड़े क्षेत्रों का मानचित्र बनाने और अंतरिक्ष में प्रयोगों का संचालन करने के लिए मानव निर्मित उपग्रहों को अंतरिक्ष में लॉन्च करते हैं। द मून इज ए नेचुरल सैटेलाइट्स ऑफ प्लेनेट जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून and Mars have many moons while Mercury and Venus have no moon at all. The Earth has only one moon. चंद्रमा एक ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है। बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून और मंगल के कई चंद्रमा हैं, जबकि बुध और शुक्र में कोई भी चंद्रमा नहीं है। पृथ्वी के पास केवल एक ही चंद्रमा है। द अर्थ्स मून, पृथ्वी का चंद्रमा। द अर्थ्स मून इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई बट हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओन। पृथ्वी का चंद्रमा रात के आकाश में सबसे चमकीली वस्तु है, लेकिन इसकी अपनी कोई रोशनी नहीं है। द डायमीटर ऑफ द मून इज अबाउट 1/4 ऑफ द अर्थ्स डायमीटर, but then why does it appear as big as the sun? चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, लेकिन फिर यह सूर्य के समान बड़ा क्यों दिखाई नहीं देता? This is because it is closer to us than the sun. It is situated at distance of about 3,84,400 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह सूर्य की तुलना में हमारे करीब है, लेकिन यह पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किमी की दूरी पर स्थित है। द मून सरफेस इज रॉकी एंड कवर्ड विद द डस्ट. इट हैज़ लार्ज होल्स ऑन इट्स सरफेस कॉल्ड craters. There is no air on the moon. It has no life of any kind. चंद्रमा की सतह चट्टानी और धूल से ढकी हुई है। इसकी सतह पर बड़े छेद होते हैं जिसे क्रेटर कहा जाता है। चांद पर हवा नहीं है। इसका किसी प्रकार का कोई जीवन से संभव नहीं है या संबंध नहीं है। The moon has different phases. It appears to change its shape during lunar the month. चंद्रमा के लगभग अलग अलग चरण हैं। ये महीने के दौरान चंद्र के आकार को बदलने के लिए प्रकट होता है। When the shape appears to be growing,
It is called the waxing period, and when the shape appears to be receding, it is called the waning period. जब आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो इसे वैक्सिंग अवधि कहा जाता है, और जब आकार कम होता दिखाई देता है तो इसे वैनिंग अवधि कहा जाता है. We see different shapes of the moon due to the sun lighting its parts up in its journey around the sun. हम चंद्रमा के विभिन्न आकारों को देखते हैं क्योंकि सूर्य प्रकाश पृथ्वी के चारों ओर यात्रा करता है. एस्टेरॉइड्स मीन्स होता है क्षुद्र ग्रह. बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर, thousands of planets like small bodies revolve around the sun along with the planet. These are called asteroids and planetoids. मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच के क्षुद्र ग्रह के हजारों छोटे छोटे ग्रह सूर्य के साथ साथ ग्रहों की परिक्रमा करते हैं. इन्हें क्षुद्र ग्रह या ग्रह दोष कहते हैं. Many believe that these are pieces of some planet which exploded a long time back, largest asteroids in the series. इन्हें क्षुद्र ग्रह या ग्रह दोष कहते हैं. यह आप सभी जानते हैं. बहुतों को मानना है कि बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि ये किसी ग्रह के टुकड़े हैं जो बहुत समय पहले फट गए थे. सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सेरेस है. मेटेओर्स मीन्स होता है उल्का. मेटेओर्स आर द स्मॉलेस्ट pieces of rocky materials that burn when they enter the Earth's atmosphere from space. चट्टानी सामग्रियों के छोटे टुकड़े हैं जिन्हें उल्का कहते हैं, जो अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर जलते हैं. They can be seen as bright streaks of light flashing across the sky and hence are known as shooting star. वे आकाश में चमकती रोशनी की उज्ज्वल लकीरों के रूप में देखे जा सकते हैं और इसीलिए उन्हें शूटिंग सितारों के रूप में जाना जाता है. मेटेओराइट्स मीन्स होता है उल्का पिंड. Many larger fragments of rock complete the journey to the Earth's surface without being destroyed. These are known as meteoroids. उल्का पिंड चट्टान के कई बड़े टुकड़ों को नष्ट किए बिना पृथ्वी की सतह की यात्रा पूरी करते हैं. इन्हें उल्का पिंड के रूप में माना जाता है. पृथ्वी पर कुछ हालिया उल्का पिंड जैसे some recent major meteorites falls on the earth were in Vladivostok, Russia in 1947, Warsaw, Britain in 1965, Northern Ireland in 1999 and France in 2011. पृथ्वी पर कुछ हालिया उल्कापिंड 1947 में व्लादिवोस्टोक रूस में थे, 1965 में बैरल ब्रिटेन, 1999 में उत्तरी आयरलैंड और 2011 में थे. कॉमेंट्स मीन्स होता है धूमकेतु. You might have heard about or seen a comet with a shining tail flashing through the night sky. धूमकेतु में आपने शायद सुना होगा या किसी धूमकेतु के साथ चमकती हुई पूंछ के साथ धूमकेतु देखा होगा. Comets are ball of dust and frozen gases held together by ice particles that revolve around the sun in elongated orbits. The ice changes to gas when it comes near the sun. धूमकेतु धूल और जमे हुए गैसों के गोले हैं जो बर्फ के कणों द्वारा एक साथ रखे जाते हैं, जो सूर्य के चारों ओर लंबी कक्षाओं में घूमते हैं.
The vaporized part from a long tail of gas and fine dust. The most famous comet is the Halley's Comet, which appears in the sky every 75-76 years. This is the time it takes to complete one orbit around the sun. It was last seen in 1986. Can you calculate when it will be seen next? सूर्य के नज़दीक आने पर बर्फ जैसे गैस में बदल जाती है। यह वाष्पीकृत भाग जैसे महीन धूल की एक लंबी पूंछ बनाता है। सबसे प्रसिद्ध धूमकेतु हैली का धूमकेतु है, जो 75 और 76 वर्ष आकाश में दिखाई देता है। यह वह समय है जब सूर्य के चारों ओर एक कक्षा पूरी होती है। इसे आखिरी बार 1986 में देखा गया था। क्या आप गणना कर सकते हैं कि यह अगली बार कब देखा जाएगा? थैंक यू. This chapter is complete.